Siddhartha wanted to find inner peace and become enlightened. He thought the way to do this was by doing extreme things like not eating and hurting his body. But these extreme practices made him very weak and sick, almost like he was about to die. Then, one day, a kind girl saw Siddhartha and noticed his suffering. She had a bowl of delicious rice pudding with her and asked, "Would you like some rice pudding?" Siddhartha stopped and thought, realizing that his extreme methods weren't working. So, he said, "Yes, I would like some rice pudding." As he ate the pudding and enjoyed its simple goodness, he had an important realization. He understood that the path to enlightenment wasn't about extremes but about finding balance, a middle way. Under a peaceful tree, Siddhartha made a decision. He decided to give up the extreme practices and follow the middle path, which means finding a balanced and moderate way of living. And it was on this middle path that he eventually found enlightenment. Ark might not be the first great flood story after all? Yes, you heard it right. Long before the Bible, ancient Indian texts like the Matsya threatened to wipe out all life on Earth. In this story, a king named Manu was warned about the coming disaster. Vishnu, in his fish form, told Manu to build a huge boat and carry with him seeds of every plant, the sacred scriptures, and the beings necessary to start life again. When the waters rose, Matsya guided Manu's boat safely through the raging flood, ensuring the survival of humanity and the world's knowledge. This ancient flood myth is strikingly similar to the story of Noah's Ark, but the Hindu version is thousands of years older, which raises a powerful question. Did different cultures witness the same catastrophic flood? Tell us in comments. लोग उसे पुराण कहते हैं। हमारे पुराणों में प्राचीन भारत का किसी युग पुरुष ने जन्म लिया। त्रेता युग में राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का संदेश दिया, समाज के चरित्र का निर्माण किया। द्वापर युग में कृष्ण ने गीता के द्वारा कर्म का सिद्धांत समझाया और धर्म की संस्थापना की। पर समय चलते धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ा। असत्य, अराजकता, असमानता, अस्पृश्यता, अर्थ सिद्धि और अंधश्रद्धा का पाखंड चारों ओर फैलने लगा। मनुष्य भयभीत हो अज्ञान के अंधकार में भटकने लगा। इसी अंधकार को दूर करने पुनः एक युग पुरुष जन्म लेने वाला था, और इस बार उस युग पुरुष का नाम था बुद्ध। महाभारत युद्ध पश्चात कई युग बीत चुके थे। उस महायुद्ध की परछाई ने भारतवर्ष को कई हिस्सों में बांट दिया था। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व भारत में मगध और वैशाली के समीप एक संघ राज्य था, कपिलवस्तु। उस समय कपिलवस्तु पर शाक्य कुल के पराक्रमी क्षत्रिय सूर्यवंशी राजा शुद्धोधन का शासन था। शाक्य राजा शुद्धोधन ने कोलिया राज्य की राजकुमारी महामाया से शादी की। 5 साल तक उनके पास कोई बच्चा नहीं था। बाद में गौतम सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सेज आसिता की भविष्यवाणी थी कि आपका पुत्र बुद्ध बनेगा, अगला शाक्य राजा नहीं। महामाया की मृत्यु हो गई। शुद्धोधन ने महामाया की बहन गौतमी प्रजापति से शादी की और शुद्धोधन ने नंद और सुंदरी का जन्म दिया। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। மன்னருக்கும் இவரு அவதாரம் இல்ல। நம்ம பாரத தேசத்துல கபிலவஸ்துங்கிற ஊர்ல இயேசுநாதர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே 567ஆம் ஆண்டு இவர் பிறந்துட்டாரு। சுத்தோதனருங்கிற மன்னருக்கும் மாயாதேவிங்கிற மகாராணிக்கும் மகனாக பிறந்தவர் இவரு। அரச குடும்பத்துல பிறந்தவரா ஆண்டி கோலத்துல இப்படி? மன்னனானா சட்டம் போட்டு மக்களை கட்டுப்படுத்த முடியும், ஆனா அவங்க மனசை மாத்த முடியாது। மகானா மாறினாதான் மக்கள் மனசை மாத்தி அவங்கள நல்வழிப்படுத்த முடியும்னு சித்தார்த்தர் நாட்டை விட்டு காட்டுக்கே போயிட்டாரு। அருமையான மனைவி, அழகான மகன், பாசமுள்ள தந்தையை பிரிந்து துறவரம் பூண்ட தூயவர் இவர்। இவங்களையெல்லாம் விட்டு பிரிஞ்சு வர இவருக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு? அப்படி கேளு, அவங்களெல்லாம் தவிக்க விட்டு வந்தவர் தானே இவரு? அப்படி இல்லப்பா, 2 நாட்டு மக்கள் நதிநீர் பிரச்சனைக்காக சண்டையிட்டு சாவதை தடுப்பதற்காக தன்னொரு குடும்பம் தவிப்பது பெருசில்லன்னு நாடு விட்டு காடேகியவர் இவர்। என்னென்ன புதுக்கதை விடுறீங்க? பின்னி மூப்பு சாக்காட்டு கஞ்சி தானே புத்தர் நாட்டை விட்டு காட்டுக்கு ஓடினாருன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க। அப்படித்தான் சொல்றாங்க, ஆனா அர்த்தம் தான் வேற। தன்னோட நாட்டுல
பிணிய போல பரவியுள்ள சாதி மத இன மோதல்களை தீண்டாமை கொடுமைகளை கண்டு அஞ்சினார். மூப்புங்கிற பழமை முதுமைங்கிற கண்மூடித்தனமான பழக்க வழக்கங்க, பேய் ஓட்டுறது, விக்கிரக வழிபாடு, சாமி ஆடுறது, மாய மந்திர தந்திரங்கள்லாம் கண்டு அச்சப்பட்டார். யாகம் வேள்வி என்னும் பெயரால் ஆடு மாடு கோழிகளை மனிதர்களை நரபலியிடுவதை உயிர் பலியிடுவதை சாக்காடாக கண்டு அவர் அஞ்சினார். காலாகாலமா மக்கள் மனசுல பதிஞ்சிட்ட இந்த மத சடங்குகளை மன்னனாக இருந்தா களைய முடியாது, மத விரோதி என இந்த மக்கள் முத்திர குத்தி இந்த நாட்டே நிலகுலைய செய்திடுவாங்கன்னு அவர் அச்சப்பட்டார். அதனாலதான் சித்தார்த்தர் மன்னராகி மத அடிமையாகிட விரும்பாமல் மக்கள் மனதை தெளிய வைக்க அவர் துறவரம் மேற்கொண்டார். நல்லா சொன்னீங்கண்ணே. நான் கூட நினைச்சதுண்டு, பிணி மூப்பு சாக்காட்டு கஞ்சி தான் புத்தர் நாட்டையே விட்டு காட்டுக்கு ஓடினார்னா அவர் நாட்டுக்குள்ள வரும்போது பிணியே வராத மூலிகையை கொண்டு வந்திருக்கணும், மூப்பே வராத சூரணத்தை கொண்டு வந்திருக்கணும், சாவே வராத அமிர்தத்தை கொண்டு வந்திருக்கணுமே. ஆனா இவரோ அதையெல்லாம் கொண்டு வராம புத்தம் தம்மம் சங்கம்னு அறவுரைகளை மட்டுமே அறிவுரைகளா கொண்டு வந்தப்போவே நினைச்சேன் இதுல ஏதோ தில்லுமுள்ளு நடந்திருக்குன்னு. ஆமா, அது என்னென்ன நதிநீர் பிரச்சனை? இப்ப நம்ம மாநிலத்துக்கும் அண்டை மாநிலத்துக்கும் நதிநீரை பங்கிட்டு கொள்றதுல தகராறு இருக்குல்ல, அதே மாதிரி அந்த காலத்துல ரோகிணி நதி நீரை பங்கிட்டு கொள்றதுல பிரச்சனை இருந்துச்சு. சாக்கியர் சங்கத்தில் இது பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது. கோலியர்கள் மேல் போர் தொடுத்து உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று சேனாதிபதி முன்மொழிந்தார். போர் கூடாது, பேசியே சமரசம் காணணும்னு அரசகுமாரரான சித்தார்த்தர் மறுப்பு தெரிவிச்சாரு. ஆனா போர் செய்தே தீர வேண்டும் என்று பெரும்பான்மையோர் குரல் கொடுத்தனர். போரால ரெண்டு நாட்டு மக்களும் ரத்தம் சிந்த நேரிடும், உயிர் பலிகள் ஏற்படும், அதனால தான் பங்கேற்க முடியாதுன்னு சித்தார்த்தர் சொல்லிட்டாரு. சங்க விதிகளின்படி போரில் பங்கெடுக்காதவருடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும், அல்லது நாடு விட்டு நாடு கடத்த வேண்டும், அல்லது தூக்கிலிட வேண்டும் என்பதெல்லாம் சங்கத்தின் விதிமுறைகள். தன்னால தன் தந்தையாருக்கும் குடும்பத்துக்கும் துன்பம் ஏற்பட்டுடக்கூடாதுன்னு தானே துன்பங்களை ஏற்று ரெண்டு நாட்டு மக்களின் உயிர் பலியை தடுப்பதற்காக துறவரம் மேற்கொண்டு நாட்டை விட்டு காடேகினார். இதனால் போர் தடுக்கப்பட்டது, பேசியே பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதிய டாக்டர் அம்பேத்கர் கூட புத்தரை போலவே தான் வகிச்ச சட்ட அமைச்சர் பதவியை திறந்தார்னு பேசிக்கிறாங்களே. ஆமா, இந்திய பெண்களுக்கு எந்த உரிமையும் வழங்கப்படாம ஆணுக்கு பெண் அடிமைங்கிற நிலைமை இருந்துச்சு. இந்த நிலைமையை மாத்தி ஆண்களுக்கு நிகரான உரிமைகளை பெண்களுக்கும் தரப்பட வேணும்னு இந்து மசோதா சட்டத்தை நாடாளுமன்றத்துல சமர்ப்பிச்சாரு. புத்தருடைய கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டதை போலவே டாக்டர் அம்பேத்கரின் கோரிக்கையும் நிராகரிக்கப்பட்டதால் அவர் சட்ட அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு பாராளுமன்றத்தை விட்டு வெளியேறினார். அட Buddha chose Mahanama or Bhikkhu. I want to be the head of a Bhikkhu order. हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे सक्के और चकमा समुदाय के पूर्वजों के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये चर्चा करेंगे सक्के समुदाय की उत्पत्ति और उनके विनाश के कारण, और चकमा समुदाय किस प्रकार सक्के समुदाय से संबंध रखते हैं उसका ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखकर हम जानेंगे। भगवान बुद्ध के जन्म के 2000 साल पहले साइटियन नाम का एक समुदाय हुआ करता था, जो समुदाय पर्यावरण के बदलने के कारण 1000 BC तक वो तिब्बत, बर्मा और चीन पहुंचे, और 600 BC तक ये साइटियंस हिमालय के पूर्वज की ओर आ पहुंचे। मध्य एशिया के लोगों को उस समय साका और साइटियन नाम से जाना जाता था, और प्राचीन काल में चाक लोगों को साइटियन नाम से जाना जाता था। इतिहास के जनक हेरोडोटस का मानना है साइटियन लोग एशिया में साका के रूप में रहे थे, और इतिहास इसके ओर इशारा करता है कि साके लोग बहुत सारे समुदाय गुल मिलकर बने थे, जिसमें 2 प्रकार के हाइपोथेटिकल विश्लेषण है सक्के कहां से उत्पन्न हुए। पहला नेपाल के हिमालय रेंज से, दूसरा भारत के सबसे प्राचीन शहर जम्बूदीपा बनारस शाही परिवार से। उस समय देश बहुत सारे हिस्सों में बांटा हुआ था और स्वतंत्र राज्य के द्वारा प्रशासन किया जाता था, जिसमें से कुछ देश राजतंत्रीय और कुछ देश गैर राजतंत्रीय देश था। राजतंत्रीय देशों को जनपद और गैर राजतंत्रीय देशों को गण और संघ के नाम से जाना जाता था, जिसमें से सक्के संघ गैर राजतंत्रीय देश था, जिसमें सक्के संघ के द्वारा बारी बारी से प्रशासन किया जाता था, और उनके राजधानी कपिल वस्तु था। और उस समय कपिल वस्तु में जयासेन नाम का एक व्यक्ति था,
जिनके बेटा सिंह हनु का शादी कंचना से हुआ और उनके शादी होने के बाद उनके 5 पुत्र और 2 बेटियां हुए, जैसे शुद्धोधना, दुत्तोधना, शुक्लधना, शक्कोधना, अमितोधना एवं अमिता एंड प्रमिता। शुद्धोधन सबसे बड़ा पुत्र था, जिनका शादी महामाया से हुआ और उसके बाद सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईस्वी सन में हुआ और जो आगे जाकर बुद्ध बने। आचार्य बुद्ध धर्मसूत्र एवं महापादना सूत्र के अनुसार जिन लोगों ने भगवान बुद्ध के जीवन शैली को अपनाया एवं भगवान बुद्ध के अनुयायी बने, उन सभी लोगों को शाक्य कहा गया। इतिहास गवाह है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में शाक्यों का नरसंहार हुआ था, जो इस प्रकार है। शाक्य एक प्रतिष्ठित और चालाक व्यक्ति थे। उस समय शाक्य संघों के पड़ोसी देश कौशला नरेश राजा प्रसन्नजीत ने शाक्य संघ से एक बेटी अपनी पत्नी के रूप में मांगे। शाक्य संघ उसे मना नहीं कर सकते थे और अपना बेटी नहीं देना चाहते थे, इसलिए शाक्य संघ ने अपनी नौकरानी के बेटी को शाक्य संघ की बेटी के रूप में राजा प्रसन्नजीत को दे दिए, जिसके चलते राजा प्रसन्नजीत और उस लड़की से एक बेटा का जन्म हुआ, जिसके नाम विडोबा रखा गया। जब विडोबा अपने नानी के घर घूमने गया तो सच्चाई बाहर आ गया, जिसके चलते राजा प्रसन्नजीत ने विडोबा और उनके रानी को त्याग दिया। लेकिन भगवान बुद्ध के समझाने के बाद राजा प्रसन्नजीत ने अपने बेटा और रानी को पुनः स्वीकार कर लिया। जब आगे जाकर विडोबा राजा बने तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए शाक्य संघ के ऊपर हमला किए, जिसके चलते 50,000 से अधिक शाक्य लोगों का नरसंहार हुआ। इस प्रकार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1000 सालों के बाद भी अनेक बार शाक्य के ऊपर हमला और उनके कत्लेआम हुआ। बहुत सारे शाक्य अपने अनुयायियों के साथ भाग गए और कहीं जाकर अपने स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए, जिनके धर्म, संस्कृति और तत्वज्ञान बुद्धिज्म था। आज भी शाक्य के लोग नेपाल और भारत के लद्दाख के कुछ हिस्से में पाया जाता है और वर्तमान में बांग्लादेश में बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है। इतिहास में कुछ शाक्य राजा का नाम दर्ज है, जैसे अभिराजा, दज राजा और बिंदके राजा। अभिराजा को चकमा समुदाय के लोग अपने पूर्वज मानते हैं, जो दज राजा जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। म्यांमार के इतिहासकारों का मानना है कि शाक्य राजा अभिराजा और बिंदके राजा के पुत्र म्यांमार के कुबू बेली कर्णपुली नदी के पास अपने स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए और म्यांमार में उपनिवेशिक लोगों को चाक और तैक के रूप में जाना जाता था। शायद वो लोग शाक्य के मूल वंशज थे। आज भी बर्मिश लोगों के द्वारा चकमा लोगों को चाक और तैक के रूप में संबोधित किया जाता है और ये शब्द चकमा लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसे चाकमा और तेटमा के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। और ये तीचाक का शब्द गवाही है चाक लोगों के होने का। इसलिए बांग्लादेश के चिटिगंग हिल ट्रैक के चकमा समुदाय और छक्के लोगों के साथ बहुत सारे समानताएं हैं। दलल चौधरी एवं जर्मन के मानव वैज्ञानिक डॉक्टर एस बासट के अनुसार चकमा समुदाय के लोग साउथ ईस्ट एशिया के मूल निवासी थे और वे बुद्ध धर्म को सदियों से पालन करते हुए आ रहे हैं। चकमा इतिहासकारों का मानना है कि वो भी हिमालयन समुदाय से शाक्य का एक अभिन्न अंग है और खुद को शाक्य संघ का एक वंशज मानते हैं, जो समय के चलते आगे जाकर शाक्य का अर्थ चकमा में परिवर्तन हो गया। जैसे कि शाक्य चाक और चाक के आगे माँ का मतलब आदमी होता है तिब्बतियन और बर्मिश भाषा में, जिसे चक्य आदमी कहा जाता है। बर्मिश वर्णन के अनुसार काइशियो क्यंगता चोएंग का मतलब चकमा होता है। चकमा लोगों के काल्पनिक इतिहास में आज भी ये झलकता है कि एक असहाय शाही परिवार के एक व्यक्ति शाक्य जीवन के एक नया भिक्खु जीवन को नेतृत्व कर रहे थे, जिसे मोइसांग राज के नाम से जाना जाता है। मोइसांग का मतलब होता है धार्मिक जीवन में एक नयापन। चकमा समुदाय के लोग आज भी इस लोक के माध्यम से अपना खोया हुआ साम्राज्य संपत नगर में वापस जाने की बात करते हैं।
जो इस प्रकार है। एलंग मोइसांग लालस ने ना एलंग मोइसांग लालस ने चल बाबे चल चंपक नगर फिरी जाए। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रशासक एवं कर्नल पायरे की पुस्तक द बर्मा हिस्ट्री के अनुसार चकमा समुदाय एक समय में बर्मा म्यांमार में रह चुके हैं और ये बात 1118 एडी के अरकन हिस्ट्री धंगवाटी आरिफुंग में उल्लेख है। बर्मिस राजा के द्वारा चकमा समुदाय के लोगों को अपने राज्य में मंत्री, सलाहकार एवं पाली अनुवादक के रूप में काम दिया करते थे और कुछ लोगों के अनुसार चकमा नाम प्रकृत और पाली भाषा से उत्पन्न हुआ, जिसका मतलब महान और शक्तिशाली होता है और ये नाम बगन इरा के समय बर्मिस राजा के द्वारा चकमा लोगों को दिया गया था। प्राचीन काल में चंपा नामक एक जगह बौद्ध संस्कृति का एक मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था, लेकिन उस जगह का सही पहचान अब तक नहीं हो पाया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो जगह भगलपुर वर्तमान बिहार में स्थित है। जॉन्स मार्क्रे शोधकार्य द अकाउंट ऑफ कुकीज के अनुसार चौमास लोग उत्तरी पूर्वी के बसने वाले पहला निवासी थे और उनके गांव को चोमा कहा जाता था और कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने उसे चुकमा उल्लेख किया है, जो नाम की एक काल्पनिक कहानी चंपक नगर से जोड़ता है, जो से बेची का एक समृद्ध शहर हुआ करता था। चंपक नगर आज भी बगलपुर के बाजू में बिहार में आज भी मौजूद है। चकमा लोगों का मानना है कि वे लोग मगध राज्य से आराकान वर्तमान म्यांमार में वहां स्थानांतरित हुए। उस समय राजा बिंबिसार का साम्राज्य बुद्ध धर्म का एक मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था और राजा बिंबिसार के बहुत सारे नागरिक बुद्ध धर्म में शामिल हो गए और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कुछ समय के लिए भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ में चीवर धारण करके रहने लगे, जिसमें से एक समुदाय चकमा समुदाय है। आज भी उनके समुदाय में कुछ समय के लिए कम से कम 7 दिन के लिए उन सभी को भिक्षु बनना अनिवार्य है और ये मगधा शब्द आज भी चकमा समुदाय में प्रचलित है। जब भी वो दुखी होते हैं मगधा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चकमा समुदाय के लोग बगलपुर बिहार में रह चुके हैं। ये प्रसिद्ध मसाला पेड़ सवारंग ये सिद्ध कर, क्योंकि चकमा जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने साथ ये प्रसिद्ध मसाला पेड़ लेके जाते हैं और जहाँ पर वो रह चुके हैं वहाँ पर आज भी पाया जाता है। बगलपुर में ये पाया जाने वाले सवारंग ट्री के बारे में आज बिहारी लोगों को पता नहीं है। इस पेड़ के हिसाब से देखा जाए तो चकमा समुदाय के लोग पहले बिहार और बगलपुर में रह चुके हैं। चकमा इतिहास अगरतला के अनुसार सदियों पहले चंपकनगर बिहार में एक सूर्यवंशी राजा के पास 2 पुत्र थे जिनके नाम विजयगिरी और समरगिरी थे। विजयगिरी सेनापति था। जब वो मेघा नदी पार करके आरकान में हमला किया तो उनका विजय हुआ। युद्ध चंपकनगर वापस आने वाले थे, तभी उनके पास एक समाचार पहुंचा कि उनके पिताजी का मृत्यु हो चुका है और उनका छोटा भाई समरगिरी राजगद्दी ले चुका है। तो इसलिए विजयगिरी आरकान राजा के साथ एक संधि करके वहां पर बच गए। नाप नदी सिटीगांव हिल डिस्ट्रिक्ट के पास। चंपकनगर नाम से एक और जगह म्यांमार में स्थित है जो पहले चक्के का केंद्र हुआ करता था। चकमा समुदाय का एक प्रचलन है, जब भी वो कहीं जाते थे तो पुराने शहर के नाम से एक नया शहर बचाते थे। जैसे इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है चकमा समुदाय और इरावती वैली म्यांमार के चाका और तैत के लोगों के साथ संबंध जुड़ रहा है। H.H. रेटली अपने पुस्तक ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल में चकमा समुदाय के लोगों को लोहिटिक ट्राइब्स ऑफ चिट्टीगांव हिल ट्रैक के रूप में वर्णन किया है। इस बात को फ्रीडरिक मिलर एवं जर्मनिस्ट मानव वैज्ञानिक लोगों ने भी माना है, क्योंकि चकमा समुदाय के लोग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंध रखते हैं एवं हिमालय की पर्वत के तलहटी से आए हुए लोग हैं। इतिहासकार सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी जनजातियां जैसे शक्य, कोलिया, लिच्छिविक, मौर्य
ये पहले मंगोलियन ओरिजिन थे या शायद मंगोलियन ओरिजिन के साथ समाहित हो चुके थे और चकमा समुदाय के लोग हिमालय पर्वत में पहले रह चुके हैं। म्यांमार के बर्मीज लोग आज भी चकमा समुदाय के लोगों को चाक तेक और ताइक के रूप में संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार इतिहास के तथ्यों को और वर्तमान समय के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है साके और चकमा समुदाय में बहुत सारे समानताएं हैं। चकमा समुदाय के लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मुगलों और ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी। इस बात को अच्छी तरीके से जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। चकमा समुदाय के राजाओं को खान और रॉय टाइटल से नवाजा गया। चकमा समुदाय ने इन सभी उपाधि को स्वीकार किए, लेकिन इतिहास में किसी चकमा राजा ने ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म नहीं अपनाए। 1850 के दशक में चकमा रानी कलिंदी रानी के सामने ब्रिटिश लोगों ने एक प्रस्ताव रखे। ब्रिटिश लोगों ने कहा कि आप हमारे ईसाई धर्म को स्वीकार करिए, हम आपके समुदाय के सभी लोगों का जीवन शैली बदल देंगे। उसका जवाब देते हुए चकमा रानी कलिंदी रानी ने ये कहा कि हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर अच्छा है और ये जीवन शैली सक्के वंश से संबंध रखते हैं। ब्रिटिश और मुगलों के द्वारा चकमा लोगों के ऊपर असंख्य अत्याचार किया गया, लेकिन उन सभी चीजों का सहन करते हुए चकमा समुदाय के लोगों ने कभी मुगलों का धर्म और ईसाई धर्म नहीं अपनाए, क्योंकि वो खुद को सक्के वंश का वंशज मानते थे। आज भी चकमा समुदाय के लोग स्वयं को सक्के वंश का एक अंश मानते हैं और इस बात को मानते हुए आज भी वो बुद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं। चकमा समुदाय के लोग ज्यादा मात्रा में म्यांमार, बांग्लादेश और भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों, इतिहास के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए क्या चकमा समुदाय के लोगों को सक्के वंशी कहा जा सकता है क्या? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी जानकारी दूसरे के ओर तक पहुंचे। हमारे चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। माधव, यदि कार्य से बंधन निश्चित है तो क्या संसार का त्याग करके संन्यास लेना उचित नहीं? जब सत्व गुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते हैं, तब अधर्म से भरे लोग भी संसार को चलाते। गीता narrated by Lord Krishna। भगवत गीता को क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हम कृष्ण भगवान की सुनाई भगवत गीता को क्वेश्चन कर सकते हैं? अर्जुन को पूरी गीता सुनाने के बाद कृष्ण आखिरी अध्याय में कहते हैं, इति ते ज्ञान माख्यात्यम गुख्यात गुख्यतरम मया विमृशयतेद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यानी कि मैंने सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तुम्हें बता दिया है, अब इस पे पूरी तरह से मनन करो, फिर जो चाहे सो करो। द चॉइस इज योर्स। रामायण में श्री राम भी अयोध्या वासियों को लाइफ का पर्पस बताने के बाद उनसे कहते हैं कि जो सलाह मैंने तुम्हें दी है वो ना तो गलत है और ना ही बलपूर्वक है। इसे ध्यान से सुनो, इस पे विचार करो और फिर जो सही लगे वो करो। यानी कि ना ही कोई स्मृति, ना ही कोई एंशिएंट ट्रेडिशन और ना ही कोई किताब इंसान की चेतना से ऊपर है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी होली किताब से ही गवर्न होता और उसे अपनी किताब को क्वेश्चन करने का भी अधिकार नहीं होता, तो क्या उसकी बुद्धि और चेतना किसी स्लेव से कम होती? 13 अक्टूबर 1935 का दिन था। डॉक्टर अंबेडकर योला कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कुछ ऐसा बोल गए जो बहुतों को अजीब लगा। उन्होंने भरी सभा में डिक्लेयर किया कि उनका जन्म भले ही हिंदू धर्म में हुआ हो, लेकिन वो एज अ हिंदू नहीं मरेंगे। ठीक 21 साल बाद यानी 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों लोगों के साथ मिलकर ऑफिशियली बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर की मौत हो जाती है। अब वो हिंदू नहीं थे बल्कि बौद्ध थे। डॉक्टर अंबेडकर ऊब गए थे हिंदू धर्म में होने वाले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से, इसलिए वो कोई ऐसा धर्म अपनाना चाहते थे जिसमें कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई जाति व्यवस्था ना हो, कोई वर्ण सिस्टम ना हो। लेकिन क्या सच में बुद्धिज्म में कोई जात पात का भेद नहीं है? आइए आज इसी बात को हम डिटेल में समझते हैं। आप देख रहे हैं क्रोनो क्लैरिटी, मेरा नाम है विजय त्रिपाठी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं, तभी जाकर के आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हमेशा की तरह सोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां जाके देख सकते हैं।
बात है 6th सेंचुरी बीसी की। ये पीरियड था इंटेंस इकोनॉमिक एक्सपेंशन का, जहां वेट राइट कल्टीवेशन हो रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा था, नए नए अर्बन एरियाज इमर्ज हो रहे थे। और यही वो समय था जब इंडिया में पहली बार मॉनेटरी इकोनॉमी डेवलप होता है। हमें इसी एज से कॉइन का पहला एविडेंस मिलता है, यानी ट्रेड और पैसे का लेन देन जोरों पर था। लेकिन इस चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट में वैदिक ब्राह्मणिकल रिलीजन फिट नहीं बैठ रहा था। वैदिक रिलीजन में एनिमल सैक्रिफाइस पर जोर दिया जाता था, लेकिन नया इकोनॉमिक सिस्टम इसे प्रमोट नहीं करता था। अब एग्रीकल्चर के लिए एनिमल चाहिए तो उसे सैक्रिफाइस क्यों करना? और वैदिक रिलीजन में उसरी यानी सूद पर पैसे का लेन देन को गलत माना जाता था, जो कि मॉनेटरी इकोनॉमी के इथोस से मैच नहीं करती थी। फिर इसी वैदिक रिलीजन में वर्ण व्यवस्था थी, जो नए इकोनॉमिक रियलिटी में फिट नहीं बैठ रही थी। अब नए नए वेल्दी क्लास इमर्ज हो रहे थे, जैसे सेठी और गृहपति। बेसिकली जो गृहपति हुआ करते थे वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जिनका बेस था रूरल एरियाज में। लेकिन जो सेठी हुआ करते थे वो थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनका बेस था अर्बन एरिया। ये किसी विशेष वर्ण से बिलोंग नहीं करते थे, ये शूद्र हो सकते थे, वैश्य हो सकते थे। यानी जो इकोनॉमी में एक नई नई हायरार्की बन रही थी वो वैदिक हायरार्की से मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके सोशल स्टैंडिंग को डिसाइड करने के लिए। यानी ये चेंजेस ओवरऑल वैदिक रिलीजन के साथ कंपैटिबल नहीं थी। और इसी कंटेक्स्ट में इंडिया में बहुत से हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इमर्ज होते हैं जो वैदिक वर्ल्ड व्यू से इत्तेफाक नहीं रखते थे। जैनिज्म हो या बुद्धिज्म, सभी ने वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट किया। ये नए रिलीजन समझ लीजिए एक ऐसा एथिकल सॉफ्टवेयर प्रदान कर रहे थे जो नए सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी को सूट करता था। जहां वैदिक रिलीजन में वेल्थ एक्यूमुलेशन को गलत कहा गया है, वहीं ये नए रिलीजन्स इसको प्रमोट करते थे। इसलिए बड़े कम समय में ये रिलीजन्स, खास करके बुद्धिज्म, स्प्रेड करने लगा। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो बुद्धिज्म वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, जाति सिस्टम के खिलाफ थे, और वो समाज में इक्वालिटी चाहते थे। जैसे बुद्ध के शरण में जाने के बाद इंसान वेवणियंती बन जाता है, मतलब बिना वर्ण के। और वासेट सूत में महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि हम पेड़ को, इंसेक्ट को, घास को, इन सबको भले ही हम अलग अलग जाति में बांट सकते हैं क्योंकि इनके फिजिकल फीचर्स डिफरेंट हैं, लेकिन हम इंसान को कैसे अलग अलग जाति में बांट सकते हैं? इनके तो फिजिकल फीचर्स सेम होते हैं, जैसे सबके पास नाक है, आंख है, कान है, बाल है। अब हाँ, मेरे पास नहीं है, भले सिर पे नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे बहुत बाल है। तो इंसान को डिफरेंट कास्ट में बांटना ये नेचुरल नहीं है, बल्कि मैन मेड है। इसलिए अगर्न्य सूत्र डायरेक्टली चैलेंज करता है वैदिक पुरुष सूक्त को। वो बोलता है कि ये डिवीजन जो है वो नेचुरल नहीं है, बल्कि मैन मेड डिवीजन है। ये जो वर्ण का क्लासिफिकेशन है, ये किसी नेचर ने नहीं दिया, किसी ब्रह्म ने नहीं दिया, बल्कि एक ये मैन मेड क्लासिफिकेशन है। इसीलिए हमें बुद्धिज्म में बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस मिलते हैं जहां पे लोअर वर्णा के लोगों को प्रॉपर स्पेस दिया गया है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जैसे उपाली, एक बार्बर कास्ट का इंसान, विनय रूल्स का एक्सपर्ट बन जाता है। इसी तरीके से सुनीता, लोअर कास्ट होते हुए भी इसे एनलाइटनमेंट मिल जाता है। अब यही उपाली और सुनीता अगर वैदिक वर्ल्ड व्यू में होते तो एनलाइटनमेंट तो दूर, ये वेद को सुन भी नहीं सकते थे। तो बुद्धिज्म में सब लोग खुशी खुशी रहने लगे, एकदम हैप्पी एंडिंग हुआ, तो कहानी खत्म हो गई, धन्यवाद। लेकिन जरा रुकिए यहाँ पर, अगर इतनी ही अच्छी डॉक्ट्रिन थी बुद्धिज्म की, तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसे एज इट इज अडॉप्ट क्यों नहीं कर लिया? क्यों उन्हें ढेर सारे चेंजेस लाने पड़े बुद्धिज्म में? आप सुनकर चौंक जाएंगे कि उन्होंने बुद्ध के 4 नोबल ट्रुथ को रिजेक्ट कर दिया था। ये तो कोर था बुद्धिज्म का। डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से ये एक पेसिमिस्टिक डॉक्ट्रिन है। इतना ही नहीं, उन्होंने बुद्धिज्म के डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म को रिजेक्ट कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ को रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए हम अंबेडकर के बुद्धिज्म को नवयान बुद्धिज्म बोलते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर बुद्धिज्म में सब कुछ अच्छा था तो क्यों इतने चेंजेस लाने पड़े? इसका जवाब हमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ही मिल जाता है, जहां पर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट कर्म और रीबर्थ का जो आइडिया था वो खुद ही सोशल इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट करता था। बाल पंडित सूत्र में बुद्ध बोलते हैं कि अगर कोई गलत काम करता है तो अगले जन्म में उसे लो फैमिली में जन्म लेना होगा, जैसे चांडाल, निषाद या वेणा। लेकिन इसके आगे बुद्धिज्म ये भी बोलता है कि क्या हुआ अगर किसी का जन्म नीच कुल में हुआ है, इसके बावजूद भी अपने कर्म और एक्शन से वो एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि बुद्धिज्म में खुद ही किसी ग्रुप को नीच कहा गया है और किसी ग्रुप को उच्च कहा गया है। लेकिन अगर बुद्धिज्म में सब कोई बराबर है, कोई वर्ण नहीं, कोई कास्ट नहीं है, तो नीच और उच्च जैसे शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हम अर्ली बुद्धिज्म में देखते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि रैंकिंग को ऊपर नीचे कर रहे थे। वो क्षत्रिय को इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर मानते थे। अंबट सूत, जो कि दिग्घ निकाय का पार्ट है, उसमें हमें इसका क्लियर एविडेंस मिलता है। बुद्ध इसमें बोलते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण ने क्षत्रिय से शादी कर लिया तो पैदा हुए बच्चे को ब्राह्मण एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब ये कि ब्राह्मण अपने लीनेज की प्योरिटी पर उतना ध्यान नहीं देते। वहीं क्षत्रिय ऐसा नहीं करेंगे। क्षत्रिय में लास्ट 7 जनरेशंस को देखा जाता है। अगर सब कुछ प्योर रहा तभी लड़का और लड़की की शादी होगी। और इसी टेक्स्ट में यह भी लिखा हुआ है कि साका प्रिंस अपने लीनेज की प्योरिटी बचाने के लिए खुद अपने बहनों के साथ सो गए थे। आपको नहीं भरोसा हो रहा है ना? ये अंबट सूत में साफ लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप जाके देख लीजिएगा।
मेरा यहाँ इंसेस्ट का एग्जांपल देने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये बताना कि क्षत्रिय अपने लीनेज की प्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे, इवन ब्राह्मण से भी ज्यादा ऑब्सेस थे। तो अगर कास्ट एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, कास्ट कुछ नहीं है सोसाइटी के लिए, या वर्ण कुछ नहीं है, तो लीनेज की प्योरिटी के लिए क्यों इतना लोग ऑब्सेस थे? आप खुद सोचिए, क्या ये बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करता? अब ये बोलना कि मेरा ब्लड लाइन प्योर है, तुम्हारा ब्लड लाइन इम्प्योर है, तो ये खुद में दिखाता है कि हम तुमसे अलग है, मींस एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट संघ में क्या हो रहा था। देखिए, बुद्धिज्म में दो तरीके के फॉलोअर्स होते हैं। एक तो वो जो संघ को ज्वाइन करके भिक्षु बन जाते हैं, और दूसरे वो जो ऑफिशियली संघ को ज्वाइन नहीं करते हैं लेकिन बाहर से सपोर्ट करते हैं। इन्हें हम उपासक कहते हैं। तो एक भिक्षु होंगे और एक उपासक। उपासक बेसिकली बुद्ध की बातों को मानकर उसी हिसाब से अपना जीवन जीते थे। तो समाज में उस समय वर्ण और जाति व्यवस्था तो थी, और उपासक भी इसी समाज से आते थे। तो हो सकता है कि ये उपासक भी जाति और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जी रहे हों। तो इसमें बुद्धिज्म का क्या दोष है? भाई, बुद्धिज्म तो 100% लोग फॉलो नहीं करते थे कि अगर उस समय जाति और वर्ण व्यवस्था है तो हम कल्प्रिट बना दे बुद्धिज्म को, क्योंकि बुद्धिज्म का कंट्रोल नहीं था 100% सोसाइटी पे। लेकिन संघ पे तो उनका 100% कंट्रोल था। वहां तो विनय रूल्स फॉलो हो रहे थे, तो वहां तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। हमें बुद्धिस्ट संघ में भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। चलिए उस पर नजर डालते हैं। विनय पिटक के रूल्स कुछ लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे कि वो संघ को ज्वाइन करें, जैसे स्लेव्स बिना अपने मास्टर के परमिशन के, सोल्जर्स बिना किंग के परमिशन के, डेटर्स जब तक वो कर्ज मुक्त ना हो जाए। अब ऐसा ना हो कि कोई पैसा उधार लिया और बोले कि अब मैं इस मोह माया को त्याग रहा हूं और चला जाए बुद्धिस्ट संघ में। अगर ये अलाउड होता तो विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग संघ को ज्वाइन कर लेते। तो ये सब कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल रूल्स थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि स्लेव्स को मास्टर का एक लेजिटिमेट प्रॉपर्टी माना जाता था। उनके पास अपना कोई अधिकार नहीं था, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं था। तो कहां से बना ये इक्वल सोसाइटी? और इस स्लेव मास्टर के रिलेशन को अबॉलिश करने के बजाय बुद्धिस्ट एथिक्स में इसे ह्यूमनाइज किया जा रहा था। जैसे सिगालवास सूत एडवाइस करता है कि मास्टर्स को अपने दास के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी टेक्स्ट में मेंशन है कि एक दासी को ब्रूटली असॉल्ट किया गया था। और फिर जब एक बार कोई संघ को ज्वाइन कर लेता था तो वो इन थ्योरी वेवडियंती बन जाता था, मतलब बिना वर्ण के। तो ये तो रहा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मींस ऐसा होना चाहिए था, प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का। लेकिन डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है, क्या वो आप ऐसा करते हैं? तो चलिए देखते हैं सच्चाई क्या थी। बुद्धिस्ट के क्लोजेस्ट डिसाइपल्स सारिपुत, मोगलन्ना, महाकसप्पा, ये सब ब्राह्मण थे। और फिर 105 भिक्षु और भिक्षुणी जिसे हम टेक्स्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें से 83 उच्च कुल के थे, 39 ब्राह्मण थे, 28 क्षत्रिय और सिर्फ 8 लोग ऐसे थे जिनका लो कास्ट बैकग्राउंड था। तो संघ की डेमोग्राफी तो कुछ और कहानी बता रही है। यहाँ तो हमें कहीं से इक्वालिटी नहीं दिख रहा है। तो थ्योरी और रियलिटी में बहुत डिफरेंसेस थे। तो चलिए अब चलते हैं हम विमेन के केस पे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या कि महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि विमेन को संघ में इंक्लूड किया जाए। इवन महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी फॉस्टर मदर थी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि विमेन को भी इंक्लूड किया जाए संघ में, लेकिन बुद्ध नहीं माने। फिर बुद्ध के डिसाइपल आनंद ने भी रिक्वेस्ट किया कि विमेन को इंक्लूड किया जाए। इस पे भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर विमेन को हम इंक्लूड कर लेंगे तो जो बुद्धिज्म 1000 साल चलने वाला था वो 500 साल में ही खत्म हो जाएगा। जैसे शुगर केन के फील्ड में कीड़े आकर के खत्म कर देते हैं पूरा खेत, इसी तरीके से अगर विमेन को इंक्लूड कर लिया गया तो पूरा संघ जो है वो करप्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आनंद के कंटिन्यूअस प्रेशर के कारण महात्मा बुद्ध अल्टीमेटली एग्री कर गए कि विमेन को भी इंक्लूड कर लिया जाए संघ में। लेकिन जब संघ में इंक्लूड किया गया तो उनके लिए जो रूल्स बनाए गए, कुछ ऐसे रूल्स थे जिसमें भिक्षुणी हमेशा सबऑर्डिनेट रही भिक्षु के। तो आप देख रहे होंगे थ्योरी और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। और जितना हम चर्चा करते हैं कि बुद्धिस्ट एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को बनाता है, एक इक्वल सोसाइटी को बनाता है, ये सब 100% करेक्ट नहीं था। सिर्फ संघ नहीं, हमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में भी इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में सोसाइटी को वर्ण या जाति के हिसाब से क्लासिफाई नहीं किया जाता था, बल्कि यहाँ पे इकोनॉमी के हिसाब से सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई किया जाता था। किसी काम को बहुत अच्छा माना जाता था, किसी काम को बहुत खराब माना जाता था। काम यानी वर्क और सिप्पा यानी क्राफ्ट को उकट्ठ और हीन में कैटेगराइज किया जाता था। मतलब कोई सिप्पा हाई हो सकता है तो कोई लो। कसी यानी एग्रीकल्चर, वाणिज्य यानी ट्रेड, गोरख यानी कैटल कीपिंग, इन सबको हाई वर्क माना जाता था। अब गौर कीजिए, ये गृहपति का प्राइमरी फंक्शन होता था जो गांव में रहता था, और गृहपति एक मेजर डोनर हुआ करता था। उन्हीं के काम को अगर आप डिग्रेड कर देंगे तो डोनेशन कहाँ मिलेगा? इसीलिए गृहपति से एसोसिएटेड काम को हाई स्टेटस में रखा जाता था। वहीं कोठक कम यानी स्टोर रूम कीपर, पुप छड़क यानी फ्लावर स्वीपर, इन सबको हीन काम माना जाता था। और नालका यानी बास्केट मेकर, कुंभकारा यानी पॉटर, पेशकारा यानी वीवर, चम्मकारा यानी लेदर वर्कर, नहापिता यानी बार्बर, इन सबको हीन सिप माना जाता था।
तो अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी तो ये ऑक्यूपेशन बेस्ड डिफरेंशिएशन क्यों, सवाल तो बनता है। तो चलिए हम और भी एविडेंसेस देखते हैं कि कैसे बुद्धिज्म में भी इनइक्वालिटी का कंसेप्ट था। विनय पिटक में सोसाइटी को ब्रॉडली दो स्ट्रेटा में क्लासिफाई किया गया है, एक है उकट्ठ जाति और दूसरा है हीन जाति। हाई कास्ट में क्षत्रिय और ब्राह्मण को रखा गया है और लो कास्ट में टोटल 5 ग्रुप को रखा गया है, चांडाल, वेणा, निषाद, रथकार और पुकुस। यहाँ 4 टियर वर्ण सिस्टम नहीं था क्योंकि बुद्धिस्ट इसे ब्राह्मणिकल कंस्ट्रक्ट मानते थे। तो उन्होंने पहले 2 वर्ण को एक्सेप्ट किया और बाकी बचे लोगों को उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से कैटेगराइज किया। इवन आप आज भी देखेंगे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही अपने आप को सिर्फ वर्ण के हिसाब से डिनोट करते हैं, बाकी बच्चे लोग अपने कास्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो शायद ये बुद्धिस्ट की ही देन हो। खैर जो भी हो, लेकिन हमने एविडेंसेस देखे कि बुद्धिज्म में भी इनइक्वालिटी प्रेजेंट थी, भले ही उतनी नहीं जितनी वैदिक सोसाइटी में थी, लेकिन यहाँ पे हमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ऑक्यूपेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, वुमेन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। यानी चांडाल जो एक वैदिक सोसाइटी